والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد لعنة الله عليهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائی کلام کے جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے آج سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین اللهم صل على محمد وعلى محمد. میری سیدہ کے بابا جان جناب علی کے برادر حسنین کے نانا افتخار کبریا نور اول ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک مسلمانوں کی آنکھوں کا نور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صل على محمد وعلى محمد. کی آمد کی سب کو مبارک ہو. ہمارا مقصد 17 اور 12 کی جو یہ بحث ہے اس میں پڑھنا نہیں، بلکہ ہمارے پیارے نبی کی جو آمد کا پورا مہینہ ہے وہی ہمارے لیے اس کا ہر ایک دن بابرکت ہے، تو ہم اس ہر ایک دن کو اتنی ہی خوشی سے بنائیں جس طرح ہم 17 کو مناتے ہیں. تو یہ جو 17 کا دن ہے یہ 2 صادقین سے منسوب ہے، ایک صدیق محمدی، ایک صدیق جعفری، ایک سچے نے دین پہنچایا، ایک سچے نے دین بچایا. تو یہ یوم صدیق ہے اور یہ یاد رہے کہ رسول خدا کی ولادت کا دن ان کی تخلیق کا دن نہیں ہے. کیونکہ رسول فرماتے ہیں کہ جب آدم مٹی بھی نہ تھی اور ان کا پانی بھی نہ تھا، یعنی آدم ہی نہ تھے، میرا نور اس وقت سے ہے، اس وقت سے نبی ہوں. تو تم مانتے رہو کہ رسول 40 برس کی عمر میں نبی بنے، ہم تو محمد کو ازل سے نبی مانتے ہیں. اور خدا ختم الانبیاء صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے تحفظ کے لیے 5 ہستیوں کو چنا. پہلی ہستی جناب عبد المطلب رسول خدا کے دادا، جناب ابو طالب رسول خدا کے پیارے چچا، بی بی آمنہ آپ کی والدہ، جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب حمزہ. ان کو جب خدا نے چنا تو ان کا مقصد یہ تھا کہ خدا جانتا تھا کہ میرے حبیب کی آمد کا دن میں اتنی نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ دشمنوں کو پتہ لگ جائے گا کہ حبیب خدا تشریف لے آئے ہیں. ضرور پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور جو نشانیاں ظاہر ہوئیں ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ ایک یہودی ہے، اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ گرا ہے، بلکہ میں کہوں کہ ستارہ گرا نہیں ہے بلکہ اترا ہے. ستارے کو بھی پتا تھا کہ آج رحمت للعالمین مقصد تخلیق کائنات اس کائنات میں اترنے والے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. یا علی. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اب جو مکے کی سرزمین میں یہ
सितारा गिरा तो वो यहूदी आया, लोगों से दरियाफ्त किया कि ये मक्का का सरदार कौन है। कहा अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब आए, कहा क्या मामला है। कहा मैंने देखा आसमान से एक सितारा उतरा है और मेरा गुमान है कि कोई निहायत अहम वाक़या रूनुमा हुआ है। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब को मालूम हो गया कि इस वक्त रहमतुल आलमीन तशरीफ ला रहे हैं। यहूदी ने बेसाख्ता कहा मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा नूर अभी तशरीफ ला रहा है, कौन सा नूर इस कायनात में कदम रंजा फरमा रहा है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं अभी नहीं बता सकता, तुम इंतज़ार करो। रसूल खुदा ने जब ऐलान नबूवत किया तो ये यहूदी बूढ़ा हो चुका था। एक मरतबा रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ, कहा मैं तो आप पे पहले दिन से ही ईमान ले आया था, बस आपके ऐलान नबूवत का इंतज़ार कर रहा था। तो अब ये यहूदी है, काफिर भी है, मगर पहले दिन से ही ईमान ले आया है कि कोई आम हस्ती नहीं है, कोई खास हस्ती है। ये वो हस्ती है कि जिनके लिए सितारे ने भी उतरना पसंद किया। ये वो हस्ती है जिनके सदके से परवरदिगार आलम ने के कायनात तख्लीक की। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उनके नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, हैदरी, या अली। और हबीब खुदा खत्मुल अंबिया सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐ मुसलमानों, अब ये ना कहना कि रसूल हम जैसे थे, रसूल हम जैसे नहीं थे। बेशक अब एक और निशानी जो वैसे है तो बेशुमार, लेकिन उनमें से एक और ये है कि मक्का हमें पता है कि कितनी गर्म सरजमीन थी, और इस गर्म सरजमीन में कहते हैं कि रसूल की आमद के वक्त जैसे खूनकी सी आ गई, जैसे ठंडक सी आ गई, हर किसी पर रहमत बरसने लगी। रहमत बरसती भी क्यों ना, रहमतुल आलमीन जो नाज़िल हुए थे, परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को जो इस कायनात में भेजा था। अब 17 रबीउल अव्वल का रोज है, जुम्मे का मुबारक दिन है। ये वो दिन है जब रसूल आने वाले हैं। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब को जब ये खबर हुई तो जनाब अबू तालिब को बुलाया। हमें मालूम है कि जनाब अब्दुल्ला तो रसूल की आमद से 2 माह पहले ही इंतकाल फरमा गए थे। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जब जनाब अबू तालिब को बुलाया और कहा फातिमा बिन्त असद से कहो कि वो आमना के घर चली जाए, कि आज एक खास हस्ती उतरने वाली है। अब जनाब अबू तालिब घर गए, कहा फातिमा बिन्त असद मेरे मरहूम भाई के घर चली जाओ, आमना के घर में आमद होने वाली है। जनाबे फातिमा बिन्त असद गई है जनाबे आमना के यहाँ, पूरी रात गुजारी है और कहती हैं कि मैंने देखा कि जो आम तौर पर ख़वातीन को विलादत के वक्त तकलीफ़ें होती हैं, आमना को वो ज़रा सी भी तकलीफ लगी। ऐसा लगता था जैसे 14वीं का चांद मेरी आंखों के सामने है। अब जब दीदी घर आई हैं तो जनाब अबू तालिब से कहा कि मैंने आज तक इतना खूबसूरत बच्चा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैंने अपनी आंखों के सामने इतने खूबसूरत बच्चे को देखा जो कि हर तरह की आलाइश से पाक था, हर तरह की नजस से पाक था, इतना पाकीज़ा था कि उसको आम बच्चों की तरह नहलाने की भी ज़रूरत न थी। इतना खूबसूरत था कि मैं देखती रह गई। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, हैदरी, या अली। मौला अली की शान में आवाज़ें बुलंद कर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आप बच्चों की तरह रोता नहीं था, बल्कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आया था, बेहद खूबसूरत, बेहद हसीन। इसके बाद मैंने देखा कि उस बच्चे ने अपनी पेशानी को सजदा रेज किया और एक तवील सजदा किया। जनाबे अबू तालिब ये पूरा वाक़या सुन रहे हैं। अब जनाबे फातिमा बिन्त असद को मुखातिब करके कहते हैं, फातिमा बिन्त असद आज से 30 बरस के बाद
भतीजे की तरह जिसकी तमाम निशानियां होंगी इल्ला नबुवा सिवाय नबूवत के। उनसे अक्सर ये एतराज करते हैं कि अली का जिक्र करते हैं, नबी की बात नहीं करते। हम कुर्बान उस मोहम्मद मुस्तफ़ा पर, उस ताहा पर, उस यासीन पर, उस मुज़म्मिल पर, उस मुदस्सिर पर, उस मुनीर पर, उस सिराज मुनीर पर, उस रहमतुल लिल आलमीन पर, उस मौलाए कुल पर। सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली या अली या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम्हारे एतराज गलत है, बिल्कुल गलत है। हम अली अली इसलिए करते हैं ताकि ज़माने वालों को पता लग जाए कि नबी नबी करने की ताज़ीम क्या है। हम अली अली इसलिए करते हैं ताकि ज़माने वालों को पता लगे जिनका अली ऐसा है उनका नबी कैसा होगा, जिनका गुलाम ऐसा है उनका इमाम कैसा होगा, जिनके कदमों में बैठने वाला ऐसा है वो खुद सरदार कैसा होगा। और हम खुदा की कसम अली के वजह से रसूल को नहीं मानते बल्कि रसूल की वजह से अली को मानते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, या अली हैदरी, या अली। आवाज़े बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर रसूल अली का हुक्म न देते तो हम अली को कभी न मानते। और कुरान में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि जो कुछ रसूल तुम्हें अता फरमाया उनसे ले लो और जो तुमसे मना फरमाए उनसे रुक जाओ। तो अगर रसूल गदीर के मैदान में भरे मजमे में अली का बाजू उठाकर मन कुन तो मौला ना कहते, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है ये ना कहते, अगर ये ना कहते कि या अल्लाह तो उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे और जो अली से बुग़्ज़ रखे तो उससे बुग़्ज़ रख। और अगर रसूल खुदा अली को उस तरह अपनी निस्बत ना बताते जिस तरह मूसा की हारून से बताई थी, अगर अली की इतनी अजमत ना बताते तो हम कभी अली को ना मानते। और अगर बस रसूल की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, हम तो बस रसूल की फरमा बरदारी कर रहे हैं। और रसूल फरमाते हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, परवरदिगार आलम ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। फिर फरमाया व अना अली मिन नूर वाहिद, कि मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। हैदरी, या अली या अली या अली। उनकी शान पर बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। चमकता है कहाँ अफलाक पर महरे मुबीन ऐसा, कहाँ होगा विलायत की अंगूठी में लगी ऐसा। खुदा महफूज रखे चश्मे बद से हुस्न हैदर को, बड़ी मुश्किल से पाया है नबी ने जान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बस आज के कलाम, आज के मिलाद का ये मकसद है कि जिस तरह हमने रसूल खुदा का जिक्र फरमाया उसी तरह हमें परवरदिगार उनकी सीरत पर अमल करने के लिए तौफीक अता फरमाए। आज के जितने भी बच्चे मेरे सामने बैठे हैं हम सबको मौला का ज़व्वार बनाए, खुदा की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। और ये दिन हम करबला में या मदीने की गलियों में अगले साल मना रहे हैं इसी तरीके से। और बस अब मैं एक नात पढ़ना चाहूँगी, तो आप सब अगर आपको आती है तो प्लीज़ मेरे साथ दीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کے دیکھا ہوں میں بھکاری آپ ہے میرے داتا سارے رشتے ناتوں سے ہے بڑھ کے اپنا ناتا آپ تو ہے آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کے راج نبھانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں کرتا ہے مجھ پہ نہ زمانہ میں اوصاف علی ہوں آپ کی آل کے آپ کی آل کے دیکھا صد ہوں سائل ہوں پرانا سبحان اللہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اللهم صل على اللہ محمد